हेलो और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट का PT2 टेस्ट के लिए हम लोग जो 2024-25 में एग्जाम हुआ है, इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग दो चीज़ों पे ध्यान रखो। पहला कि ये जो क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे ने मुझे भेजा है, थोड़ा सा इसने ब्लरी फोटो भेज दिया है। तो अगली बार से अगर कोई भी प्यारा बच्चा मुझे जब क्वेश्चन पेपर भेजे जिससे दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को अच्छा बनाने की कोशिश करना, यानी कि ब्लरी फोटोज ना लेना। दूसरी चीज, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से उस बच्चे को थैंक यू जरूर बोल दो जिसने तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर भेजा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर एकदम लेटेस्ट पैटर्न के आधारित है। मैंने देखा एकदम पूरे के पूरे तुम्हारे ऐसा लगेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे PT3 के लिए, यानी तुम्हारे एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर है, 45 मिनट का हमको समय मिलने वाला है। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है पैसेज। मैं पैसेज को रीड करूंगा थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्योंकि देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ब्लरी है क्योंकि बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है, इट इज एन क्या है, इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट दैट द वर्ल्ड हैज गॉन टू फार विथ द innovation of new technologies such as mobile phone, the internet, and so on, due to which people are able to tour the cosmos virtually, sitting at one place using their smart devices or other technologies gadget. Though mobile internet access is oftentimes hurried and short, it can still provide common internet features like alert, weather data, email, search engines, instant message, and games and music downloading. Due to the easy access of smartphone, communication has been very effective and instant. People are able to convey their message all around the globe to their loved one without spending hefty sums of money. Adults are always fond of such gadgets, and they always welcome the and adopt such new technology readily. Further, young people have been able to broaden their minds and improve their skill by doing research on the internet. For instance, they use uh, smartphones to look up any new word they call across. As we know that most of universities have online technologies provisions, and smartphone assist the student to complete their assignment on time. The mobile phone has been a lifesaver for a lot of people in case of any emergency. Likewise, use of smartphone can be a vital importance in preventing crimes in the society by providing information to the security forces in time. Nonetheless, for the young, the use of the mobile phone can be like an addiction, and they can misuse it. Young people are also prone to getting involved in undesirable activities on the internet. ये तुम लोग की बात किया जा रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनो इसको. This might have adverse effect on their academic performance. Therefore, young people should always be monitored and made aware of its bad outcomes. Also, a major contributor to its popularity, it is the availability of prepaid or pay-as-you-go services from a phone shop or or an online store. This allows subscribers to load text or airtime credits to their handsets by use of their credit cards, debit cards, or by buying a prepaid card from the network they subscribe to. This plan also does not commit a particular customer to a contract. If prepaid card is not that appealing to you, then you can option to subscribe using the pay by month plans. तो ये है तुम्हारा मोबाइल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पूरा का पूरा इंटरनेट के बारे में ज्ञान। ये पैसेज 5 नंबर का है। अब इससे हम लोग के पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलो उसे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी थोड़े ब्लरी हैं, ध्यान से देखना। द रीजन वाई कम्युनिकेशन टुडे हैज बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट is because of the improved mobility system, easy access of smartphones, growing organization, या फिर increasing number of vehicles। बताओ इसमें से क्या रीजन होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, young people with smartphones in their hands are needed to be monitored because they can waste time, be negligent, misuse of gadgets, या फिर be indulge in undesirable activities on internet,
या फिर पांचवा भी दिया हुआ है डिसऑबे देयर पेरेंट्स। अब तुमको इसमें से यहाँ पर से टिक नहीं लगाना है, तुमको ये जो चार ऑप्शन दिए ना इनमें से टिक लगाना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। क्या पहला और तीसरा वाला सही है, या फिर दूसरा और चौथा, या फिर तीसरा और चौथा सही है, या फिर पहला और पांचवा वाला सही है, कौन सा सही है ये तुमको बताना है। देन थर्ड वाला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द टू मीनिंग्स ऑफ वर्चुअली एज यूज्ड इन पैराग्राफ 1। पैरा 1 में जो वर्चुअली वर्ड आया हुआ था तो उसमें से यानी उसका जो है सही मीनिंग कौन से वर्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, करेक्टली, ऑलमोस्ट, मोर और लेस, सिमिलरली, या फिर ऑनलाइन। तो यहाँ पर तुम्हारे जो ऑप्शंस हैं 1 4 2 5 3 4 या 4 5 है, इनमें से तुमको कौन सही लग रहा है वो तुमको टिक लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, द मोबाइल फोन इज कंसिडर्ड अ लाइफ सेवर इन केस ऑफ डैश डैश डैश, है ना, किस केस में वो लाइफ सेवर है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो तुम ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर है, बस थोड़ा सा बच्चे ने ब्लरी फोटो खींचा है, नहीं तो मैं तो तारीफ करते करते नहीं थकता इस क्वेश्चन पेपर की। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड अ फ्रेज इन पैरा 2 विच मीन्स सर्च फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग बुक, कंप्यूटर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तुम्हारे 5 क्वेश्चन थे 5 नंबर के। अब आ जाते हैं हम लोग आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में, ये भी बहुत जरूरी है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, 2-2 नंबर के 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तुम लोग एक काम करना, तुम लोग ना इस चीज का जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे तुम लोग नोट डाउन करते जाओ फटाफट, ताकि तुम लोगों को ये देखना ना पड़े, थोड़ा सा आंख खराब हो जाएगी ज्यादा आंख गड़ा करके सब देखोगे तो। मैं तो देख रहा हूँ, तुम मुझको पढ़ाना है तुम लोगों को, ठीक है, और मेरे एक के देखने से बहुत सारे बच्चे लोग आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन तुम लोग अकेले अकेले देखोगे तो दिक्कत होगा, इसलिए तुम लोग जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको उतारते भी जाओ जल्दी जल्दी। The others around me had to change, not me. Who said these words and what did the person change? ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारी बुक से। फिर सेकेंड है, instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. Who is I here and what kind of determination the person had? And third question है कि what is the meaning of क्या लिख रहा है यार, एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे 2-2 नंबर के थे। फिर 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द चैलेंजेस मारिया फेस्ड इन ऑर्डर टू बिकम नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, देन ग्रामर सेक्शन में तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 1-1 नंबर के तीनों है क्वेश्चन। पहला है रिपोर्ट द डायलॉग, यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर का डायलॉग दिया हुआ है, वेयर डिड आई कीप माई वैलेट, मदर बोलती है नॉट अगेन, have you looked on your table? In response to the question asked by the daughter, the mother asked blank। यही तुमको यहाँ पर फिल करना है। Then second है, select the option that identifies the error. Boys who have never fight with one another in schools are bitterly annoyed today। अब इसमें कौन से जो हमारे एरर है तुमको बताना है। वन है, ईच, हैव का मतलब हैज होना चाहिए था, या फाइट का फॉट होना चाहिए था, या फिर बॉयज का बॉय होना चाहिए था, क्या होना चाहिए ये तुम लोगों को बताना है। थर्ड क्वेश्चन है ब्लैंक वाला, आई ब्लैंक स्पाइसी फूड फॉर लंच एंड माई स्टमक स्टिल हर्ट्स। हैव या फिर हैव बीन या हैड, हैव हैड या फिर हैविंग। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये भी है। सपोज यू आर राज, अमृत या संगीता, है ना, राज अमृत है आपका नाम या फिर संगीता है, जो भी रखना चाहो रख लो। यू ट्रेवल अलोन बाय अ ट्रेन टू पटना टू सी योर यंगर ब्रदर्स हु लिव्स इन सम स्कूल हॉस्टल। राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन योर जर्नी बाय ट्रेन। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर होता है, बहुत जोरदार क्वेश्चन पेपर है PT3 के एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन पेपर का तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं, अदरवाइज तुम्हारा ये अच्छा खासा प्रैक्टिस करा देगा। बोर्ड की तैयारी जैसे होती है ना, इसी तरीके से तुम्हारी PT3 की तैयारी करा देगा बहुत अच्छे तरीके से, तुमको अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बच्चे लोग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को इसी तरीके से डिस्कस किया जाए, तुम्हारे पास PT3 का FA3 वगैरह का अगर क्वेश्चन पेपर है तो तुम लोग मुझे भेज सकते हो, या फिर किसी भी एग्जाम का अगर है क्लियर फोटो लेकर के या क्लियर डॉक्यूमेंट बना करके PDF बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, जिसका जो नंबर जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।